friends, welcome to my channel Advocate Club. So today we have started the Indian Contract Act 1872, a rapid revision for this act, and we need to understand firstly the basic principles or background of the Indian Contract Act. Then we will start an important section to understand. Okay, so first one, it came into force on 1st of September 1872, and the bill pretending to act on 1872 was passed on 25th of April 1872, and the act came into force on the 1st of September 1872. Okay, so two important dates: came into force and assent or pass the bill on the date, that is a passing date, and that is a came into force. Came into force. It is, if you see, overall it is having sections 1 to section 266. Total section 1 to section 266, overall that all sections, and it is divided into two parts as we have seen in our revision lecture. It is a right in personam. A right in personam. That is a legal term. Right in rem, right in personam. So that is a right in personam. It is codified law है. Codified law. Illustration based and contract, that is a together or substantive law. English base है, so it is English law and it is non-exhaustive. It is based on English law and it is non-exhaustive. Okay, so that is a basic background of the Indian Penal Code. Now we can start the revision of ICA. So the Indian Contract Act, having the chapterization of Indian Contract Act, first one is a general principle of contract, that is the first part, contract first, and second part, that is the indemnity bailment agency, the three part including second contract. For law student, which is a LLB, BA LLB, the first contract act and second contract act. So first contract act in third year to the BLLB student, first contract, and that is the second contract act, and depend vice versa the any competitive examination having whole of the Indian Contract Act. The first part of this, that is the general principle of contract, it is having 1 to section 75. Next, the special contract, the remaining contracts are special contract. So first special contract is Sale of Good Act, section 76 to section 123, but it is repealed. Why? Because a specific or special law, Sale of Good Act, that is SOGA, it is special act, therefore it is omitted or repealed in this contract act. So special क्या हुआ था, एक एक्ट बना था, इसकी नीड पड़ने लगी थी बिकॉज जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे थे सेल्स में, वो इसमें जो प्रोविजंस थे कम पड़ रहे थे, तो स्पेसिफिकली एक एक्ट बनाया गया अलग से, जिसका नाम रखा गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसलिए यहाँ से जो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो रिपील कर दिया गया. उसके बाद हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आता है, दैट इज़ अ इंडेमनिटी एंड गारंटी, विच इज़ डीलिंग विद सेक्शन 124 टू सेक्शन 147. एंड नेक्स्ट पार्ट इज़ बेलमेंट एंड प्लेजमेंट. तो बेलमेंट और प्लेजमेंट रहता है कि जिसमें आप गुड्स देते हो किसी को कुछ टाइम के लिए, कुछ करके दो, उसके बाद आपको उसको रेम्यूनरेशन दोगे, कुछ अमाउंट दोगे, उसके बाद वो रिटर्न मिलेगा आपको प्रोडक्ट. दैट इज स्पेसिफिकली बेलमेंट डील करता है. और वो बेलमेंट के जो सेक्शंस डील करते हैं सेक्शन 148 टू सेक्शन 181. देन है एजेंसी आती है सेक्शन 182 टू सेक्शन 238. एजेंसी में माइनर भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जो हमने देखा है
हम स्पेसिफिकली स्टार्ट करेंगे तो माइनर इज नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज मोहरी बुब्बी वर्सेस धर्मदास घोष, हम वो केस लॉ डिस्कस करने वाले हैं। एंड लास्ट वन बट नॉट लीस्ट दैट इज सेक्शन 239 टू सेक्शन 226, दैट इज अ पार्टनरशिप। एंड पार्टनरशिप एक्ट भी अलग से बनने की वजह से यहाँ से इसको रिपील कर दिया गया है एंड अब वो नहीं एग्जिस्ट करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सो हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन में, हम लोग देखेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सेक्शन 1 टू सेक्शन 75। तो इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड करने का ट्राई किया है। फर्स्ट वन इज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो बात करता है आज हम जो देखने वाले हैं, इसका फर्स्ट पार्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि फॉर्मेट कैसे करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का बेस जो होता है, पिलर जो होता है, जब घर बांधते हो जैसे फॉर एग्जांपल, उसको जो बेस तैयार करते हो उसी तरह से आपको एक बेस तैयार करना है, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज डीलिंग अंडर सेक्शन 1 टू सेक्शन 24। देन आते हैं काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लाइट कौन से काइंड के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वॉइड हो सकता है, वॉइडेबल हो सकता है एंड वॉलिड हो सकता है, ये आप 3 पैटर्न जानते हो। तो ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसमें कौन से कॉन्ट्रैक्ट आएंगे वो डील करने वाला। सेक्शन 25 टू 30 डील करता है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से फर्स्ट ऑफ ऑल। देन कंटिन्यूसली हम देखेंगे सेक्शन 72 तक 25 से काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन उसके बाद सेक्शन 72 टू सेक्शन 75 डील करता है कॉन्सिक्वेंशियल पार्ट, जो रेमेडीज मिलेगी हमको वो कहाँ होगी, तो बताता है हमारा कॉन्सिक्वेंशियल पार्ट, दैट इज द थर्ड पार्ट। नाउ वी कैन स्टार्ट विथ द डायग्राम। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए हम एक डायग्राम देखेंगे जिसके अंदर हमको पता चलेगा कि व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप देखते समय नोटिस करोगे कि आपको डेफिनेशन पार्ट स्टार्ट होता है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कंटेंट्स देखने के बाद पहले सेक्शन 1 एंड 2 है। जिस फर्स्ट सेक्शन तो आपका आता है शॉर्ट टाइटल का, उसमें नेम एंड इनैक्टमेंट डेट आएगा आपका एक्ट का। देन उसके बाद आता है सेक्शन 2, दैट इज अ इंटरप्रिटेशन क्लॉज। एंड इंटरप्रिटेशन क्लॉज में सारे एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं कि कौन सा वर्ड कैसे आता है, लाइक प्रोपोजल, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल, वैलिड, इन सब की क्या है डेफिनेशंस या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन स्टार्ट होती है इंटरप्रिटेशन क्लॉज में सेक्शन 2, दैट इज ए प्रपोजल। तो हम देखेंगे कि प्रपोजल किसको बोला जाता है, और प्रपोजल होने के बाद अगर आप किसी को प्रपोज करते हो किसी चीज़ के लिए, वो प्रपोजल को आपने क्या किया, सामने वाले पार्टी ने असेंट दे दिया, देन इट इज़ एक्सेप्टेंस, तो वो डील करता है 2B में। एंड वो एक्सेप्टेंस जो उसको मिला है, वो एक्सेप्टेंस मिलने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है प्रॉमिस में। एंड प्रॉमिस और सेट्स ऑफ प्रॉमिस, अगर आप सेक्शन 2E की डेफिनेशन देखोगे तो इट सेज दैट प्रॉमिस और सेट्स ऑफ प्रॉमिस इज अमाउंट टू एग्रीमेंट। तो वो क्या हो जाएगा, एक एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए होना ज़रूरी है इन्फोर्सेबल एट लॉ। तो एक एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तब जाके वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। बट जब किसी एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल ऑफ लॉ करना होगा तो उसके लिए ये सब के सब क्या है, सेक्शन 24 टू 1 सेक्शन 11 टू 24 क्या है, नेसेसरी है और इम्पॉर्टेंट है कि समझना, तब जाके वो क्या हो सकता है, इन्फोर्सेबल एट लॉ हो सकता है। तो हम देखेंगे स्पेसिफिकली सेक्शन 11 डील करता है कंपेटेंट पार्टीज। सो इन्फोर्सेबल एट लॉ करने के लिए, लॉ से इन्फोर्सेबल करा के लेने के लिए किसी एग्रीमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको होना चाहिए कंपेटेंट पार्टी। अगर आप कंपेटेंट पार्टी नहीं हो एग्रीमेंट करने के लिए तो वो कैसा होगा, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। वाई सो, दैट इज एग्रीमेंट इज द फर्स्ट स्टेज। अगर एग्रीमेंट होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, मगर एग्रीमेंट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है इस सेक्शन पे। इसके अंदर अगर आप कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं हो तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि एग्रीमेंट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज यहाँ पे क्या हो सकता है, कैंसिलेशन हो सकता है, वो एग्रीमेंट का वॉइड हो सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो हमको फर्स्ट क्या लगेगी, पहली कंडीशन लगेगी हमको कि पार्टी कंपेटेंट होना चाहिए, यानी मेजर होना चाहिए। मेजर की जो डेफिनेशन है, जो एज दे रखी है, वो यहाँ पर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पर भी डील नहीं है। तो मेजॉरिटी एक्ट का सेक्शन 3 बताता है कि माई मेजर, यानी उसको बोलेंगे 18 ईयर ऑफ एज, इफ़ लीगल गार्डियन हो गए तो 18 ईयर ऑफ एज इफ़ उसके रियल गार्डियन हो गए तो, एंड इफ़ कोर्ट अलाउड द गार्डियंस द लीगल गार्डियन, तो वो 21 ईयर का क्या होगा, मेजर कहलाएगा। ऐसे 2 काइंड्स बता रखे हैं मेजॉरिटी एक्ट में स्पेसिफिकली। एंड स्पेशली नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा साउंड माइंड। सो पर्सन कैसा होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए नेचर ऑफ क्वेश्चन वॉट एवर आस्किंग टू हिम, दैट इज सेक्शन 12। और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए, किसी भी लॉ में उसको डिस्क्वालीफाइड करके नहीं रखा हुआ होना चाहिए।
बट उसके एक्सेप्शन आते हैं एलियन, एनिमी एंड इंसॉल्वेंट। ये 2 पर्सन क्या होते हैं, ऑलवेज डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होते हैं। नेक्स्ट इसका इसे आपको एडिशन लगेगी हमारी कंपेटेंट पार्टी के पास, दैट इज़ फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट बताता है कंसेंट, फ्री कंसेंट के पहले देखना नेसेसरी कि कंसेंट क्या है। तो सेक्शन 13 बात करता है कंसेंट से। तो कंसेंट क्या होगा, ये सेक्शन बोलता है कि किसी सेम थिंग पे सेम सेंस पे एग्री करना, देन इट इज़ अ कंसेंट। ये बताता है हमारा सेक्शन 13। सेक्शन 40 बताता है कि वो सेम थिंग एंड सेम चीज़ को जो एग्री कर रहे हैं वो फ्री कंसेंट से है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है आपको देखना। तो फ्री कंसेंट है या नहीं वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज़ अ निगेटिव डेफिनेशन। फ्री कंसेंट कब होगा, जब ये चीज़ें नहीं होगी। क्या चीज़ें नहीं होगी, तो बताता है सेक्शन की कोर्शन नहीं होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा और मिस्टेक नहीं होगा। एट दैट टाइम क्या होगा, वो फ्री कंसेंट कहलाएगा एंड देन जाके वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ कर सकते हैं एंड एग्रीमेंट कन्वर्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। एंड हम ये देखेंगे अभी आगे कि किसके लिए क्या क्या है, कॉर्शन किसको बोला जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस किसको बोला जाएगा, हम डील करेंगे अभी। एंड लास्ट वन इज ए लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो सेक्शन 23 एंड 24 बोलता है अगर ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन लॉफुल होगा तभी वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ होगा एंड कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सो ये बेसिक चार्ट है, सेक्शन पूरे डील करता है 24 तक। हमको अंडरस्टैंड करने के लिए, सिंपली रिवाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। हम जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो देखना स्टार्ट करेंगे अभी, दैट इज़ अ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के लिए। फर्स्ट हमने अभी देखा प्रपोजल। तो प्रपोजल किसको बोला जाएगा, दैट इज़ अ वन पर्सन, कोई एक इंसान सिग्निफाइज टू अनदर विलिंगनेस, उसका खुद का विलिंगनेस कुछ करने के लिए देता है और वो पर्सन उस प्रपोजल को लेके एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, दैट इज सेक्शन बी टू बी, दैट इज एक्सेप्टेंस। व्हेन अ पर्सन टू होम प्रपोजल इज सिग्निफाइज, जिसने प्रपोजल दिया है उसने क्या किया, उसका असेंट लिया उस पर, या उसका असेंट दिया उसने प्रपोजल देने वाले को, देन इट इज़ एक्सेप्टेड कहलाएगा। यानी ए ने बी को कुछ बोला कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है या बेचना है, उसने हाँ बोला जब, देन इट इज़ एक्सेप्टेड। ए और बी का एक्सेप्टेंस और असेंट नेसेसरी है, इसने प्रपोज करना चाहिए और सामने वाले ने एक्सेप्ट करना चाहिए, देन इट इज़ अमाउंट टू प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। अब जितने सेक्शन है रिमेनिंग जो डील करते हैं फर्दर आपके, देखोगे आप, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन मेड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, ये सब कुछ सेक्शन है। लाइक सेक्शन 7 डील करता है एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, मस्ट बी एब्सोल्यूट होना चाहिए। तो उसको कुछ पॉइंट्स में लिखा है मैंने, देयर मस्ट बी अ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए वो, कि स्पेसिफिकली आपकी लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। आप प्राइवेट रिलेशनशिप में या फिर पब्लिक रिलेशनशिप में, इसमें एक लीगल एंटिटी क्रिएट होनी चाहिए, देन आप उसको बोल सकते हो कि हाँ ये लीगल रिलेशनशिप है, तभी क्या होगा, वो नोट इसका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है तभी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आप लाइक किसी होटल में खाना खाने जाओगे, बैठोगे, आपने ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद आपको कॉल आ गया, आप निकल गए, आपने खाना खाया ही नहीं और आपने बोला कि मैंने तो खाना खाया ही नहीं, मैं क्यों पे करूँ, ये आप ग्राउंड नहीं ले सकते। वाई, बिकॉज दैट इज़ अ लीगल रिलेशनशिप। आप वहाँ गए थे, आपने कुछ ऑर्डर किया था, दैट इज़ वो इम्प्लाइड कंडीशन थी कि हाँ, इम्प्लाइड कंसिडरेशन था कि आप जो फूड दे रहे हो मैं उसका पे करूँगा आपको खाने के बाद। तो ये लीगल रिलेशनशिप थी। एज आप किसी फ्रेंड के घर पे बैठ के खाने खा रहे हो और आपको कॉल आ गया, आप निकल गए, तो एट दैट टाइम वहाँ पर केस फाइल नहीं करेगा आपका फ्रेंड आप पे, जैसे एक शॉप, वो होटल और रेस्टोरेंट का ओनर जो कर सकता है आप पे केस। वाई, बिकॉज यहाँ पे इम्प्लाइड क्या था, कंसिडरेशन था, इसलिए वहाँ पर कंसिडरेशन, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रही थी उस कंसिडरेशन के लिए, देयरफॉर इट इज़ अ लीगल। तो लीगल जहाँ होता है वहीं पर क्या होगा, आपको इसेंशियल करा जा सकता है। नेक्स्ट वाला इसका हमारा पॉइंट आता है प्रपोजल टू बी वैलिड प्रपोजल इट मस्ट बी कम्युनिकेट। और प्रपोजल कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल रहे हो कि हमारे पास जब ड्रिंक बैन हो गई थी, इंटॉक्सिकेशन वगैरह बैन कर दिया गया था लीकर को, और आप लीकर के शॉप पे जाके मांग रहे हो, पैसे दिए आपने, उसने आपको कुछ फ्रॉड किया, देन जब वो वैलिड था ही नहीं लीगल नज़रों में, तो वो कम्युनिकेट करने के बाद भी कुछ बेनिफिट नहीं होगा। इस तरह का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आप नहीं कर सकते हो केस फाइल। बट आपने कम्युनिकेट किया और कोई वैलिड, जिस शॉप पे जाकर आप किसी किराना शॉप पे कोई सामान ले रहे हो, वैलिडली आपने प्रपोजल किया, कम्युनिकेट किया उसको, देन इट इज़ वैलिड। इन एब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ प्रपोजल देयर कैन नॉट बी वैलिड एक्सेप्टेंस। इफ़ आपने क्या किया, सामने वाले को बोला कि मुझे कुछ खरीदना है या कुछ भी लेना है उसके पास से, और सामने वाले के कान में हेडफोन्स थे या ब्लूटूथ लगे थे, उसने कुछ सुना ही नहीं आपने क्या बोला, देन उसको नॉलेज ही नहीं है, तो वो एक्सेप्ट कैसा करेगा। तो स्पेसिफिकली नॉलेज होना चाहिए सामने वाले को, जो भी आपने प्रपोजल दिया है, दैट इज़ ऑल्सो एसेंशियल एलिमेंट। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेंट। तो आपने जिसको प्रपोजल दिया है ना, उसी ने एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई थर्ड पार्टी आके ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे मंजूर है, मैं करने को तैयार हूँ ये डील।
ये नहीं हो सकता जिसको आपने किया है प्रपोजल उसी ने एक्सेप्ट करना चाहिए। बट इफ़ इन केस ऑफ जनरल ऑफर एक्सेप्टेंस कोई भी कर सकता है, लाइक फेयर एंड लवली या फिर एनी कोल्ड क्रीम जो बोलता है कि हाँ हम ये लगाने से वो एकदम गोरा कर देंगे, अगर नहीं करे तो हम आपको इतनी इतनी अमाउंट पे करेंगे, और अगर वो पे नहीं करते हैं देन इट इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज वो जनरल ऑफर था हर किसी के लिए और जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। इसमें कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का मैक केस था, आप लोगों को याद होगा, तो इसमें इस तरह से एक स्मोक बॉल का उसने ऐड किया था, तो वो एक जनरल ऑफर था, इसलिए उस वूमन को कंपनसेशन यहाँ ग्रांट हुआ था। देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एसेंशियल पॉइंट, फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट हमारा आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। जो एक्सेप्टेंस करने वाले अब सेकंड पार्टी है, हमने देखा कि प्रपोजल करने के लिए 3 कंडीशन गए हमारे, अब एक्सेप्टेंस करने वाला जो पार्टी है सेकंड पार्टी, वो एक्सेप्टेंस करते समय उसको एब्सोल्यूट करना चाहिए। अभी बोला और सामने वाले पार्टी ने प्रपोजल दिया, देन एक नेक्स्ट पार्टी ने क्या बोला, ए ने बोला कि हाँ मेरा ये प्रपोजल है आपके लिए, क्या आप एक्सेप्ट करोगे, एंड एट दैट टाइम एब्सोल्यूटली अगर इसने बोला कि हाँ मुझे एक्सेप्ट है, देन क्या हो जाएगा वो एक्सेप्टेंस। बी ने क्या बोला, हाँ एब्सोल्युटली आई एग्रीड ऑन दैट एट दैट मोमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, तभी वो एक्सेप्टेंस कहलाएगा। या अनकंडीशनली, ऐसे आप नहीं कर सकते कि आपने कोई क्या क्या कंडीशन रेस की कि नहीं मुझे ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो मैं वैसा करूँगा। एक कोई भी अगर आप कंडीशन रेस करते हो तो क्या हो जाएगा, वो वैलिड नहीं हो सकता वो एक्सेप्टेंस। इस एक्सेप्टेंस वैलिड होने के लिए एब्सोल्यूट होना चाहिए, एब्सोल्यूट के साथ साथ कैसा होना चाहिए, तो एक अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तभी वो वैलिड कहलाएगा। एंड अमाउंट टू काउंटर ऑफर, अगर इन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया, अनकंडीशनल नहीं किया, कोई कंडीशन डाल दिया, अब इसने कोई कंडीशन बोल दी कि ये करने के लिए मुझे ये करोगे तब मैं करूँगा, तो वो क्या होगा, एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा काउंटर ऑफर, वो हो जाएगा काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर क्या करती है, कभी भी रिवोक करती है ओरिजिनल ऑफर को। तो अब प्रपोजल ने जो ओरिजिनल ऑफर दिया था फर्स्ट वाला, वो क्या होगा, रिवोक होगा, अब इसको काउंटर ऑफर पहुंच गया। अब डिपेंड करता है ए पे कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे काउंटर ऑफर। तो ये इस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। नेक्स्ट वन आता है हमारा, मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। अब इसने बोला है, ए ने सिर्फ कम्युनिकेशन किया है और सिर्फ कम्युनिकेशन की जो इन्फॉर्मेशन बी को पहुंची है इसको एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे। एक्सेप्टेंस करने के लिए मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल एंड कम्युनिकेट ऑल्सो। क्या करना पड़ेगा, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, यस कम्युनिकेट कि यस मुझे क्या है, एक्सेप्ट है, इस तरह से क्या करना पड़ेगा, ए को उसको बताना भी पड़ेगा, देन जाके वो क्या होता है, एक्सेप्ट होगा। मेर इन्फॉर्मेशन या मेर कम्युनिकेशन सिर्फ बात हो गई, इसका मतलब उसने एक्सेप्ट किया, ये आप भी नहीं मानोगे और सामने वाला भी ये नहीं बोल सकता है। सो नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है हमारा कंसिडरेशन। सेक्शन 2D बताता है व्हाट इज अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मीनिंग आता है डिजायर ऑफ प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। अब ए और बी का जो अभी एग्जाम्पल देखा था हमने, दैट इज अ प्रॉमिसर जिसने प्रपोजल किया है, एंड बी दैट इज अ प्रॉमिसी जिसने एक्सेप्टेंस करना है। दैट इज अ प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। यहाँ पर जहाँ ओ आर लगता है हमेशा रिमेंबर करना, बेलार, बेली, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, इस तरह से जितने भी वर्ड आएंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में, आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड देखने मिलेंगे। प्लेज में आता है, बेलमेंट में आता है बेलर का, तो एजेंसी में आता है, एंड लाइक कॉन्ट्रैक्ट में मोस्ट प्रॉबेबली आपको आगे जितने भी एक्ट आएंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जितने भी सेक्शन आएंगे उसमें इस तरह के बहुत सारे टर्म्स हैं। तो रिमेंबर जो डील करता है वो ओ आर आता है, जिसके एंड में डबल ई आएगा, वो डील एक्सेप्ट करने वाला हो सकता है, सेकंड पार्टी और सामने वाली पार्टी होती है, रिमेंबर। तो यहाँ पर बेलर ने क्या किया, और बेली है ये, डबल ई, बेली और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और abstains और promises to do, कि उन्होंने प्रॉमिस किया फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एज abstinent और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। इसने बोला कि मैं 1 लाख रुपए में घर बेच रहा हूँ, इसने बोला कि मैं 1 लाख रुपए में घर खरीदने तैयार हूँ, दैट इज अ कंसिडरेशन। और इसमें कुछ केस लॉ है जो डील करते थे कि स्ट्रेंजर कैन नॉट सू बट बेनिफिशरी कैन सू। और देख था हमारा स्ट्रेंजर कैन नॉट सूट, हमने इसमें देखा कि अभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये होने के बाद तो सूट कर सकता है बी ए पे या ए बी पे, जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है वो। बट अब यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है, स्ट्रेंजर है कोई, तो स्ट्रेंजर क्या कर सकता है, थर्ड पर्सन ये सुन रहा था, सिर्फ एक सी है, इन दोनों का कॉमन फ्रेंड है ए एंड बी का, इनका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, तो सी जाके कोई सूट फाइल नहीं कर सकता है कोर्ट में कि हाँ मैं सूट फाइल करता हूँ, और क्योंकि ये दोनों नहीं कर रहे, ऐसा वो नहीं बोल सकता। हाँ बट इसमें स्ट्रेंजर नहीं कर सकता, लेकिन बेनिफिशरी क्या कर सकता है, बेनिफिशरी सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि बेनिफिशरी को ये दोनों के कॉन्ट्रैक्ट करने से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलने वाला था। अब इनका ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो इनके वजह से इसको जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा, देयरफॉर ये क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है, दैट इज़ अ बेनिफिशरी कैन सूट। इसमें एक हम लोग देखते हैं खर्चाई पानदान का जो केस लॉ था,
नवाब ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस नवाब हुसैनी बेगम 1910 का केस था। तो इसमें स्पेसिफिकली क्लियर कट बताया था कि बेनिफिशियरी अगर कोई होगा उसे खर्चा पानदान का जो उसको खर्चा मिलता था उसके ससुर से वो जो है वो देना बंद करता है। तो वो बेनिफिशियरी थी और कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके डैड के और उसके ससुर के बीच में। तो इन बिटवीन वो दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी वो जो बेनिफिशियरी थी वो पान के खर्चा लेने वाली उसको बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है। देयरफॉर शी इज़ ऑल्सो लायबल टू मेक अ सू और पार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच। अगर वो क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ इस बिहाफ पे सू फाइल कर सकती है बिकॉज शी इज़ अ बेनिफिटरी। इस तरह से क्या होता है, ये केस लॉस कुछ डील करते थे इससे। देन इसेंशियल एलिमेंट इसलिए आता है कि कंसिडरेशन शैल बी मूव एट अ डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। अब जो कंसिडरेशन है, ए ने बोला कि मुझे क्या करना है, 1 लाख में घर बेचना है, दैट इज अ कंसिडरेशन जो होगा, डिज़ायर किसका होगा, ए का होगा। ऑब्वियसली बी नहीं बोल सकता है कि मुझे घर खरीदना है और मुझे 1 लाख में दे दे, ए को बेचना है ना, तो वो बोलेगा उसी कितनी अमाउंट उसको लगती है कि इतने में बेचूंगा मैं, 1 में बेचूंगा, 10 में बेचूंगा। सो बेनिफिशियरी क्या होता है, सॉरी कंसिडरेशन क्या होता है, हमेशा प्रॉमिसर के डील करता है प्रॉमिसर पे, एंड प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। फिर सेकंड वाला क्या बोलेगा, अगर उसको एक्सेप्ट करना है तो बोलेगा कि हाँ मैं 1 लाख में खरीदने को तैयार हूँ। देन नेक्स्ट डिज़ायर किसका आएगा, तो वो आएगा प्रॉमिसी का। इसका कुछ प्रिंसिपल है, स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सू बट बेनिफिशियरी अंडर कॉन्ट्रैक्ट कैन सू, दैट इज ये भी अपने जो केस लॉ डील किया। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो कंसिडरेशन कैसे हो सकता है, 3 काइंड का हो सकता है। लाइक अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं फ्यूचर में 2 महीने के बाद अभी मैं ये सारा रकम दे रहा हूँ और रिमेनिंग अमाउंट मैं आपको क्या करूँगा 2 मंथ के बाद दे दूंगा। तो 2 मंथ के बाद जो देने की बात होती है दैट इज फ्यूचर। सो इट इज़ पॉसिबिलिटी कंसिडरेशन किसी भी टाइम पे दिया जा सकता है एग्रीमेंट करके। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 10, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जो भी हमने डील किया था ऊपर जो हमने डायग्राम में देखा था वही बात करता है हमारा सेक्शन 10। और सेक्शन 10 में हमने देखा था कि कंपिटेंट पार्टी होना चाहिए, दैट इज अ फ्री कंसेंट होना चाहिए एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, 3 पार्ट। और वो 3 पार्ट को डिवाइड किया हुआ है सेक्शन 11 से कंटिन्यूसली। तो सेक्शन 11 बोलता है कंपेटेंट पार्टी कौन होगा, जो हमने देखा मेजर साउंड माइंड नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ इज कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एंड माइनर के जो एग्रीमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। वो इज़ अ मेजर, तो मेजर किसको बोला जाएगा, यह भी हमने डील किया। व्हाट इज अ मेजोरिटी, इट इज़ अ डिस्कस अंदर इंडियन मेजोरिटी एक्ट इन 18 ईयर अंडर नेचुरल गार्डियन होगा तो, और 21 ईयर इफ उसके लीगल गार्डियन हो गए और रिप्रेजेंटेटिव हो गए। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष के केस में ये डिस्कस हुआ था कि माइनर इज नॉट competent टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर इज नॉट competent टू कॉन्ट्रैक्ट, competent टू कॉन्ट्रैक्ट, ये डील हुआ था ये केस लॉ में। माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड। शादी कली का एक केस आया था, देर कैन नॉट बी स्टॉपेल अगेंस्ट माइनर के अगेंस्ट कोई स्टॉपेल नहीं लगाया जा सकता। नो रेटिफिकेशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट की कोई जो भी एग्रीमेंट होते हैं माइनर के साथ किए हुए वो रेटिफाइड नहीं किया जाते। हाउएवर माइनर कैन बी डोनी अंडर सेक्शन 122 ऑफ इंडियन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक्ट में जो डोनी होता है, गिफ्ट डोनर जिसमें हम देखते हैं डोनर एंड डोनी गिफ्ट में, तो हमने जो देखा था डबल ही, देखिए यहाँ पे डबल ही आया, डोनर मतलब देने वाला, डोनी मतलब लेने वाला। एंड 122 गिफ्ट की बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। एट द टाइम माइनर एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए वो डोनी बन सकता है। माइनर कैन बी एजेंट अंडर सेक्शन 182 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट देखे उसमें हमने देखा कि एजेंसी होती है, तो उसमें जो एजेंट है वो माइनर हो सकता है, इट इज़ वैलिड। एंड अंडर सेक्शन 68 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इफ एनी नेसेसिटी सप्लाइज टू माइनर हिज प्रॉपर्टी में बी लायबल। तो 68 सेक्शन हम जो देखेंगे आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी नेसेसिटी सप्लाई की जाती है किसी चाइल्ड को, तो वो माइनर के साथ किया हुआ एग्रीमेंट तो वॉइड हो जाएगा, बट उसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो रिकवर करने के लिए जो भी खर्चा किया माइनर पे वो लायबल रहेगी। नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे सेक्शन 12, दैट इज अ साउंड माइंड। तो साउंड माइंड पर्सन कौन होता है, इफ अ पर्सन of a contract at the time of contract is capable to understand natural of his act। वो जो कर रहा है वो नेचर है जो एक्ट का उसके, वो उसको समझ रहा है कि वो क्या कर रहा है। एंड इट्स इफेक्ट ऑफ ऑन हिज ओन इंटरेस्ट, उसका जो इफेक्ट है जो करने के बाद उसको इफेक्ट आएगा जो भी, वो इफेक्ट को वो समझने के कैपेबल है, देन द पर्सन इज साउंड माइंड, ऐसा बोला जाएगा। यूजुअली साउंड माइंड कैन नॉट इंटर इन टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज अ स्टेट ऑफ अनसाउंडनेस माइंड। एक साउंड माइंड है वो कभी कभी क्या हो जाता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में चले जाता है, जैसे हम बोलते हैं किसी को झटके आते हैं, देन एट दैट टाइम अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वैलिड नहीं रहेगा। अ पर्सन इज यूजुअली अनसाउंड माइंड, उसका वाइस वर्सा हो जाएगा कि कोई पर्सन हमेशा पागल रहता है, कभी ना कभी उसको होश आके वो अच्छा होता है, तो जब वो अच्छे कंडीशन में रहेगा, साउंड माइंड में रहेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, दैट इज अ वैलिड हो जाएगा। सो ये कंडीशन फुलफिल करता है। एंड थर्ड वाला हमने देखा था नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। सो एलियन एनिमी एंड इंसॉल्वेंट पर्सन इज ऑलवेज डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ।
एंड नेक्स्ट वन आता है हमारा सेक्शन 13 दैट इज कंसेंट व्हेन टू और वन पर्सन एग्रीज सेम थिंग इन सेम सेंस मीटिंग ऑफ माइंड। तो क्या होना चाहिए, से एग्री किस चीज़ पे करना चाहिए, सेम थिंग और सेम सेंस में आप लोग बोलोगे कि क्या चेंज है, तो सेम थिंग एक डिफरेंट चीज़ है, सेम सेंस एक डिफरेंट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई दोनों एक बात पर डिस्कशन चल रहा है और दोनों ने बोला कि हाँ बैठ के आज डिस्कस किया, ए ने बोला कि मुझे क्या करना है यार, घर खरीदना है, तेरा घर बहुत अच्छा है। बी ने बोला कि हाँ मैं तो घर बेचने वाला हूँ, मेरा जो घर है वो मैं ना बेचने वाला हूँ। ए ने बोला कि कितने में बेच रहा, क्या कर रहा है। इन लोगों का पूरा डिस्कशन हो गया, बातचीत हुई, लेकिन ना कोई एग्रीमेंट हुआ ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उनके बीच में कोई भी इस तरह से डील नहीं हुई कि हाँ वो घर खरीदने वाला है। सिर्फ ये बातचीत हुई कि बी को घर बेचना है और ए को घर खरीदना है। एक घर चला गया, 2 दिन के बाद ए ने बी को कॉल किया क्योंकि उसका वो फ्रेंड था कि यार मेरे को ना घर खरीदना है और क्या है, घर के जो पेपर्स वगैरह है वो सब रेडी कर दिया है और मुझे एक विटनेस लग रहा है, और क्या करो, घर का विटनेस लग रहा है, या फिर सिर्फ उसने ये इन्फॉर्म दिया है बी को कि मैं घर खरीद रहा हूँ और जल्दी से तू क्या कर, रजिस्टर ऑफिस आ जा, आधार कार्ड वगैरह सब लेके दे रहा। अब बी को क्या लगा कि ए ने जो बात हुई थी परसों तो वही घर खरीदने का, मेरा घर खरीदने की बात कर रहा है और रजिस्ट्री ऑफिस में वो मुझे इसलिए बुला रहा है। इट मीन्स ये जो घर की बात थी सेम थिंग की बात थी, खरीदी की ही बात हो रही थी, लेकिन सेम सेंस नहीं था। वाई, बिकॉज ए को बी का नहीं कोई और घर खरीदना था सी का, और वो विटनेस के लिए अपने फ्रेंड को बुला रहा था कि आधार कार्ड लेके आ जा। तो मोस्ट प्रॉबेबली ऐसा हो सकता है कि आप एग्री कर रहे हो लेकिन सेम थिंग पे कर रहे हो, लेकिन सेम सेंस पे नहीं कर रहे हो, सेंस डिफरेंस हो सकता है सामने वाले बोलने का। तो कंसेंट कब होगा, जब सेम थिंग एंड सेम सेंस बोथ एट अ टाइम होगा, देन ही जाके वो क्या हो जाएगा, कंसेंट हो सकता है। देन नेक्स्ट वाला सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 14 दैट इज़ अ फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट हम किसको बोलेंगे, ये निगेटिव डेफिनेशन है कि फ्री कंसेंट जब होगा तब कॉज नहीं होगा, क्या, coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake, that consent is said to be free consent। उसके बाद क्या होगी, कंसेंट फ्री कंसेंट होगी। तो सेक्शन 15 डील करता है coercion से, तो coercion किसको बोलेंगे, वो डील बताता है सेक्शन 15 दैट इज अ forbidden by law। एनी मीन्स coercion ऑफ थ्रेटनिंग टू कमिट एनी forbidden by इंडियन लॉ। कुछ 511 सेक्शन जो है हमारे इंडियन पिनल कोड के, इंडियन पिनल कोड में टोटल 11 सेक्शंस है एंड 23 चैप्टर्स है, एंड 23 चैप्टर में जितने भी जो ऑफेंसेस है उन ऑफेंसेस को करने की धमकी देना उस इंसान के साथ, या उसको ये थ्रेट करना कि अनलॉफुल डिटेन कर दूंगा, या फिर क्या करेगा उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेगा, या फिर जितने भी हमारे आईपीसी के अंदर क्राइम्स है, जितने भी ऑफेंसेस है वो कमिट करूंगा बोल के उसको क्या करना, थ्रेट करना, और फिर कुछ करा के लेना, उस मतलब उस पर्सन को क्या करना, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर करने लगाना, ये वाली थ्रेटनिंग दे के, देन वो क्या होता है, कोर्शन होता है एंड इट इज़ वॉइडेबल। ये वैलिड नहीं होगा, वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल मीन्स वो पार्टी को राइट रहेगा कि वो या तो असेंड करे या तो डिसेंड करे, कंटिन्यू करे वो कॉन्ट्रैक्ट, या तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट से जाके रिजेक्ट करा के वॉइड करा के ले ले। ये जो पार्टी है वन ऑफ द पार्टी को राइट होता है ये करके लेने का, देन इट इज़ कॉल्ड वॉइडेबल। एंड का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इमटेरियल है, आईपीसी वो एप्लीकेबल होती है उस प्लेस पे या नहीं होता है, इससे कोई कंसर्न नहीं है। लाइक हमने इंडियन पिनल कोड में हमारे सेक्शन 3-4 में देखा था कि टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, तो कौन से जुरिस्डिक्शन में आता है, तो यहाँ जुरिस्डिक्शन इररिलेवेंट हो जाता है, किसी भी प्लेस पे हो आप, चाहे वो आईपीसी एप्लीकेबल हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट वाला सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 16 दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस इट मीन्स रिलेशनशिप ऐसी होना चाहिए दैट इज सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज एंड द पोजिशन टू डोमिनेट विल। तो वन पर्सन कैसा होना चाहिए, 2 पार्टीज है ए एंड बी, तो ए और बी में से एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले पार्टी का क्या कर रहा है, एक्स या वाई लेते हैं हम लोग, एक्स या वाई लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल एक्स है, एक्स ऐसा पर्सन है जो सामने वाले की वाई की विल डोमिनेट कर सकता है, मतलब उसकी मर्जी को वो बोल सकता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और वो वाई जो है उस पर अंधा भरोसा करता है कि इसने बोला ना तो ऐसे ही होगा, और वो सुनकर ये क्या कर रहा है, अनफेयर एडवांटेज ले रहा है। उसको पता है मैं बोलूँगा तो सामने वाला करेगा ही। उसने जो सुना, उसने बोला कि तू तेरा घर बेच दे, अच्छा नहीं है वहाँ पे कुछ भूत बाधा है और वो घर में रहना सही नहीं है तेरे लिए, बेच दे। तो उसने बोला ठीक है बेचता हूँ, और उसने क्या किया, वो घर किसके नाम पे बेचूँ, क्या किसको बेचूँ, किसको ढूंढूँ, ऐसा है तो कौन खरीदेगा। एक्स ने बोला टेंशन मत ले, मैं क्या करता हूँ, तेरे को अब नुकसान क्यों होना, इसकी वजह से मैं तुझे थोड़े पैसे दे देता और मैं ही रख लेता वो घर, ऐसा बोल के उसका क्या किया, अनफेयर एडवांटेज लिया। इस तरह से अनफेयर एडवांटेज लेना चाहिए, क्या करके, डोमिनेट करके किसी की विल, इस तरह से रिलेशनशिप इसकी दोनों पार्टीज़ की इस तरह से होना चाहिए कि वो अंडरस्टैंडिंग या वो उस पर भरोसा करता हो, तब जाके होता है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। एंड पर्सन इसका जो इसेंशियल एलिमेंट है, होल्ड एनी रियल एंड अपीरेंट अथॉरिटी ओवर देम। ये क्या होना चाहिए, कोई अथॉरिटी होना चाहिए, लाइक उसको फ्रेंड है या तो फिर किसी ऐसी जगह पे कि जैसा इसका केस लॉ भी है
कि एक आश्रम में कोई लड़की रहती थी, उसकी बहुत प्रॉपर्टी थी, तो उसकी प्रॉपर्टी को क्या किया गया, बोला गया कि कुछ प्रॉपर्टी वगैरह कुछ अच्छा नहीं है। वो संत लोग जितने भी वहाँ रहते हैं वो लोग बोलते हैं उसको कि प्रॉपर्टी कुछ नहीं होता है, भगवान से एकात्म होना चाहिए। तो उसने बोला कि क्या करना चाहिए मुझे, उसने बोला कि सारी प्रॉपर्टी आप दान कर दो। अब मैं दान किसको करोगी, वो लड़की सोचती है। तो वो जो अनाथ आश्रम, वो जो आश्रम होता है वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, हमारे आश्रम को कर दो, हमारी ट्रस्ट भी तो है, सब गरीबों की मदद करती है। और वो लड़की ने जब दान कर दी पूरी प्रॉपर्टी, उसके बाद उसको कोई पूछने भी नहीं लगा, उसको साइड कर दिया गया पूरा की पूरा। उसको जो वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती थी, उसकी वीआईपी ट्रीटमेंट पूरी की पूरी विड्रॉ कर दी गई। देन इस तरह से कोई करता है, अथॉरिटी के अंदर उसको थी ना अथॉरिटी उसका, वो सुनेगी लड़की। एट दैट मोमेंट पे क्या होता है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, और इस तरह से कोई अनफेयर एडवांटेज लेता है अनड्यू इन्फ्लुएंस से, तो इट इज़ वॉइडेबल, और उसको क्या करा जा सकता है, कोर्ट से वॉइड करा करके लिया जा सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करा के लिया जा सकता है। यही बोलता है हमारा सेक्शन 16, दैट इज़ अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। पर्सन इनटू कॉन्ट्रैक्ट अनदर हु इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज बॉडीली माइंड, या फिर कोई बीमारी है उसको, माइंड में उसको कुछ प्रॉब्लम है, समझ नहीं आता सही से, ऐसे इंसान से भी कुछ करा के लेना, अनफेयर एडवांटेज लेना ऐसे इंसान का, इट इज़ ऑल्सो अमाउंट टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसमें एक प्रिजम्पशन है कि प्रिजम्पशन माना जाएगा कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस से ही करा के लिया, ये डील करता है। इट इज़ अवॉइडेबल। एंड नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 17, दैट इज़ अ फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, जो इसमें जो फॉलोइंग एक्ट दे रखे हैं वो अगर आते हैं तो उसको फ्रॉड माना जाएगा, ऐसा डील करती है हमारी डेफिनेशन। फर्स्ट वन इसमें पार्ट आता है, सजेशन ऑफ एनी फैक्ट ट्रू विच इज मेकर नोज दैट इज नॉट ट्रू, कुछ गलत है उसको सही साबित करके बताना, दैट इज़ अ फ्रॉड। नेक्स्ट आता है एनी प्रोमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म इट, कोई ऐसा प्रॉमिस किया जो आपको करना ही नहीं था परफॉर्म, दैट इज अमाउंट टू फ्रॉड। नेक्स्ट में आता है एनी एक्ट विच इज़ डिक्लेयर एज फ्रॉडुलेंट, कोई ऐसा एक्ट है जो फ्रॉडुलेंट है, ये डिक्लेयर कर दिया हुआ है, तो क्या होता है, वो भी फ्रॉड में कंसिडर होता है। मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, बट व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड। जब आपको मेयर साइलेंस मतलब आपको कुछ बोलने की नीड थी आप शांत रहे, तो वो क्या होगा, फ्रॉड नहीं होगा। जब तक आपको पूछा नहीं गया, सामने वाले ए एंड बी की कोई डील चल रही है, तो ए ने बी जो बेच रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ली नहीं, सिर्फ गया वो, या आप बेच रहे हो क्या, उसने बोला हाँ मैं बेच रहा हूँ, इसने खरीद लिया पेमेंट देके, तो उसने जब पूछा ही नहीं तो इसने कुछ बोला नहीं, सो मेयर साइलेंट नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। बट व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, अब वही फॉर एग्जाम्पल वो कार थी किसी फ्रेंड की और उसको ले जाना थी, अब उसने कुछ पूछा नहीं, कार की चाबी लिया और वो चला गया, और वो उसको पता ही नहीं वो कार की चाबी लेके एक शांति था, और जाके उसको बाद में पता चला कि वो कार का ब्रेक फेल था, देन वो क्या होगा, उसकी साइलेंस फ्रॉड नहीं होगा। बट बाद में वही उसकी बेटी अगर कोई डॉटर या फिर कोई बॉय लेकर जाता है, उसका सन लेकर जाता है वो ड्राइव करने के लिए, देन उसकी ड्यूटी टू स्पीक है, वो साइलेंट नहीं बैठ सकता कि उसको ब्रेक जो है फेल है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स में मैंने ट्राई किया बिठाने की। अंडरस्टैंड ये करो कि जब बोलने की नहीं है टाइम, उसको बोलने की नीड नहीं है, वो खामोश रहता है कोई चीज़ बेचते समय, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रॉड नहीं होगा। बट जब उसकी ड्यूटी है कि उसको बोलना नेसेसरी है, लाइक उसको पूछा गया कि ये चीज़ सही है या गलत है, अब उसको बोलना पड़ेगा, अब वो शांत रहेगा तो नहीं चलेगा। इस तरह से आता है हमारा 4th पॉइंट। एंड इसका भी इफेक्ट क्या आता है, वॉइडेबल आता है, सो इसको भी क्या करा के लिया जा सकता है, कैंसिल करा के लिया जा सकता है इन द कोड। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 18, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन बात करता है सजेशन ऑफ एनी फैक्ट एज ट्रू विच इज़ नॉट ट्रू बट मेकर्स बिलीव दैट इट ट्रू, तो कोई ऐसी चीज़ को सही साबित करना जो सही नहीं है, या इनोसेंट मिस्टेक विदाउट इंटेंट टू डिसीव एनी पर्सन। लाइक वो हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे मॉल्स में जो ब्रांड्स होते हैं उनके कॉस्ट जो होते हैं काफ़ी होते हैं, लेकिन लोकल मार्केट के शॉप पे आप जाओगे तो सेम नेम से सेम ब्रांड से वो लोग चीप में वो प्रोडक्ट बेचते हैं, छोटा सा ए का डिफरेंस कर देते हैं, रिबोक का रीबुक, ऐसे कुछ चेंजेस करके बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट चेंज करते हैं। दैट इज़ अ मिस रिप्रेजेंटेशन, वो मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये वही ब्रांड है और आपको बेच रहे हैं, दैट इज़ अ मिस रिप्रेजेंटेशन। तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होगा। एंड अगर हम मैथमेटिकल फार्मूला देखें तो कुछ इस तरह से देखने आएगा हमको कि फ्रॉड में अगर माइनस कर दिया जाए इंटेंशन टू डिस्यू, देन वो बनता है मिस रिप्रेजेंटेशन, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में प्लस कर दिया जाए इंटेंशन टू डिस्यू तो वो बनता है फ्रॉड। दैट इज सेक्शन 17, 17 खतरा होता है फ्रॉड। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 20, 21 एंड 22, दैट इज डीलिंग विद मिस्टेक। अब मिस्टेक में हम लोग देखेंगे एग्रीमेंट वॉइड होता है पूरा की पूरा, क्यों, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगी, तो बोथ पार्टी को भी पता नहीं था कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी कि जो हम डील कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो उनके जाने के बाद, लाइक आप कोई चीज़ बेच रहे हो, कोई एनिमल कोई जानवर बेच रहे हो और आप आके मार्केट में खड़े रहे, आपने पूरी डील कर दी उसकी, और डील होने के बाद सामने वाले पार्टी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, बोथ ने क्या किया, एक्स ने कोई चीज़ बेचने का बोला, वाई ने वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिया, बट एग्जैक्टली वो जो एनिमल था, वो भाई जो भी ए था एनिमल, कोई जो भी चीज़ उनको बेचने की थी, वो वहाँ पर डेड हो गई। अब ये दोनों को भी पता नहीं था
कि वो मर चुका है, दैट इज़ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और जब वो जगह पे पहुँचे तो ऑलरेडी वो मरा हुआ था, तो जो एग्रीमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आता है, इसलिए मिस्टेक की डील करती है सेक्शन 22 से। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 23 लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। हमने जो चार्ट देखा उसका लास्ट सेक्शन आता है 23 एंड 24 जो डील करता है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए या प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ नहीं होना चाहिए, इंजुरी किसी को करने वाला नहीं होना चाहिए, नेचर उसका इमोरल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, तब जाके क्या होता है एक लीगल ऑब्जेक्ट या लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन हो सकता है। अदरवाइज वो लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन नहीं होगा। अगर ये 5 चीज़ें आती है तो अगर वो ये 5 चीज़ों में इंक्लूड होता है तो वो वाइड हो जाएगा। अगर ये 5 चीज़ें निकाल दो देन इट इज़ अ वैलिड होता है। एंड इफ एग्रीमेंट एंड कंसिडरेशन एंड पार्टली लॉफुल एंड पार्टली अनलॉफुल, दैट मीन्स अगर एक ही पार्ट है, 2 पार्ट से डील हो रहा है, किसी ने क्या किया एग्रीमेंट किया, आपको एक लिस्टेशन भी है उसमें कि कोई ड्रग्स बेचने की डील करता है और कोई शक्कर उसके साथ में बेचने की डील करता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट, तो शुगर की जो डील थी वो वैलिड रहेगी और बाकी जो ड्रग्स बेचने की डील थी वो क्या रहेगी, इनवैलिड हो जाएगी और वॉइड हो जाएगी। तो सेपरेशन जहाँ कर सकते हैं वहाँ सेपरेट करके एक ही कॉन्ट्रैक्ट को, एक ही एग्रीमेंट को अलग से डिवाइड किया जा सकता है। एंड जो रिमेनिंग पार्ट वैलिड था, लॉफुल ऑब्जेक्ट था जिसका, वो वैलिड रहेगा और जो नॉन वैलिड था वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अगर वो नॉन सेपरेबल हो गए दोनों चीज़ें, उसने बोला कि शक्कर के अंदर मिला के क्या कर मुझे ड्रग्स सप्लाई करना है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों ये पूरे के पूरे हो जाएंगे वॉइड। ये था हमारा सेक्शन 1 टू सेक्शन 24। नाउ वी हैव सीन दैट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, जो हमने बोला था 25 से 30 डील करता है। सेक्शन 25 टू 30 दैट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट डील करते हैं एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। हमने जो कंसिडरेशन वर्ड देखा, अगर वो नहीं होता है कंसिडरेशन किसी भी एग्रीमेंट में तो वो क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे, पहला वर्ड। एंड एक लैटिन मैक्सिम है दैट इज एक्स नूडो पैक्टो नॉन एट्रस सेक्शन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट बोलता है इसका मतलब स्पेसिफिकली। नेक्स्ट वाला आता है इसके एक्सेप्शन, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन हो नहीं हो तो हमने देखा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। बट विदाउट कंसिडरेशन भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो वैलिड होती है, दैट इज़ द फर्स्ट वन है सेक्शन 25 का फर्स्ट एक्सेप्शन। कोई प्रॉमिस करता है रिटर्न में एंड रजिस्टर्ड कि नेचुरल, क्यों करता है कि उसको नेचुरल लव एंड अफेक्शन है किसी से, कोई चीज़ गिफ्ट करता है किसी को लव एंड नेचुरल अफेक्शन से, देन ये क्या हो जाएंगे, विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो वैलिड हो जाएंगी, इट इज़ अ वैलिड। आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गिफ्ट का एक सेक्शन दिखाई देगा जहाँ पर भी क्या होता है, क्या नेचुरल लव एंड अफेक्शन से किसी को कोई चीज़ गिफ्ट दी जाती है, वो भी वहाँ पर क्या होता है, वैलिड होता है। वहाँ का और यहाँ का आप डिफरेंस मेजर करने जाओगे तो एक जगह पर आता है कि आपको लव एंड अफेक्शन में सिर्फ नियर एंड डियर रिलेटिव्स को ही दे सकते हो आप वो गिफ्ट, बट अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी देखोगे तो इट इज़ अ वाइडर टर्म, वहाँ पर आता है कि आप किसी को भी गिफ्ट दे सकते हो एंड इट इज़ वैलिड विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो। नेक्स्ट वन आता है सेकंड पार्ट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेब्ट। किसी का डेब्ट है, किसी की उधारी ली हुई है और उसका टाइम खत्म हो गया, आपने एक एग्रीमेंट बना के दिया कि मैं टाइम खत्म हो गया लेकिन ये डेट पे फलाने आपको फ्यूचर में क्या करूँगा, वो पे करूँगा, तो वो टाइम बार डेट है लेकिन उसका एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के हो रहा है, तभी भी इट इज़ वैलिड। एनी प्रॉमिस मेड फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, किसी ने कोई सर्विस दे रखी थी आपको पास्ट में और एग्रीमेंट करके आपने बोला कि मैं फ्यूचर में तुमको पे करूंगा उसका अमाउंट, तो वो जो एग्रीमेंट है विदाउट कंसिडरेशन होता है, देन ऑल्सो इट इज़ वैलिड। एंड नेक्स्ट होता है कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जहाँ एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहाँ पर कंसिडरेशन की कोई नेसेसरी नहीं होती है। गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन, गिफ्ट इज विदाउट कंसिडरेशन, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन तो वैलिड नहीं होता है, लेकिन गिफ्ट होने के कारण वो क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है, जो हमने डील किया अभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिलेटेड। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 26 दैट इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड, किसी को शादी करने के लिए रोकना, लाइक फंडामेंटल राइट है अब तो हमारा कि चूज टू अ लाइफ पार्टनर, और कोई सी ने लाइफ पार्टनर चूज़ किया, वो मेजर है, वो शादी करने जा रहा है तो उसकी शादी रोकना, ये क्या होगा, एग्रीमेंट इस तरह का कि शादी नहीं कर सकता, किसी को शादी को करने से रिस्ट्रेन करना, दैट इज़ अ वॉइड। इसका एक एक्सेप्शन है मैरिज एग्रीमेंट, सॉरी माइनर मैरिज, किसी माइनर की शादी करा रहे हो आप और माइनर की शादी करने के लिए रोक रहे हो, देन इट इज़ क्या हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा, ये इसका एक्सेप्शन आता है। सेक्शन 27 बोलता है रिस्ट्रेन इन ट्रेड इज़ वॉइड, किसी भी ट्रेड को करना, ट्रेड करने के लिए रुकाना, किसी को बिजनेस करने के लिए रोकना, ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। मगर अगर सेल ऑफ गुडविल एंड पार्टनरशिप एक्ट की जो फॉर्म्स होते हैं उसको आप क्या कर रहे हो, ट्रेड को, आपका पार्टनरशिप बिजनेस में कोई पार्टनर है उसको आपने बोला कि तूने बाहर जाके ना सेम बिजनेस नहीं करना चाहिए हमारे साथ जो कर रहा है, तो आपने रिस्ट्रेन किया उसके ट्रेड पे, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, वो वैलिड हो जाता है ये दो कंडीशन में।
सेक्शन आता है 28 बात करता है एग्रीमेंट एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्टिंग फॉर लीगल प्रोसीडिंग। किसी को आपने बोला कि आप लीगल प्रोसीडिंग नहीं करोगे तो मैं आपके साथ ही एग्रीमेंट करूंगा, तो इस तरह से जो एग्रीमेंट आपका बन रहा है इज इट सेल्फ इज वॉइड। इस तरह से एग्रीमेंट बनाते तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन आता है, दैट इज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अगर आप करते हो आर्बिट्रेशन के एग्रीमेंट करने के लिए आप रुकाते हो, किसी को रिस्ट्रेन करते हो, देन इट इज़ अ वैलिड, ये वैलिड हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट रहता है सेक्शन 29 दैट इज डीड एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अब आपने जो एग्रीमेंट किया उसमें कुछ परफेक्ट है ही नहीं, क्या बेचना है, क्या खरीदना है, किससे बेच रहे हो, किससे खरीद रहे हो, कुछ भी डिटेल नहीं एग्रीमेंट में, सिर्फ बेच रहे हो और खरीद रहे हो, तो उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। देन अनसर्टेनिटी जहाँ आती है तो वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, तो डील करता है सेक्शन 29। सेक्शन 30 बोलता है वेजरिंग एग्रीमेंट, जैसा कि क्रिकेट बेटिंग वगैरह होते हैं हमारे पास क्या है, ये वॉइड है। और लेकिन जो हॉर्स रेसिंग होती है जिसकी अमाउंट मोर देन 500 रुपीज़ है, अगर 500 रुपये से ज़्यादा की बेटिंग होती है हॉर्स रेसिंग के ऊपर, तो वो क्या होता है, वैलिड होता है। ये है हमारा सेक्शन 30 डील करता है। नेक्स्ट का हमारा सेक्शन 31 से 36 डील करता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेंगे, ये बताता है 31 में मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट है और आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में भी वह आपको ये डील करता है, क्या आता है, कंटीजेंट जो है वहाँ पर भी एग्रीमेंट आते हैं, आपको देखने मिलेगा। हम जब डील करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एट दैट टाइम हमको डिस्कस करेंगे। सेक्शन 31 स्पेशल बताता है कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ़ एनी इवेंट हैपन और डज नॉट हैपन। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस लिए बोला जाएगा कि हैपन होना चाहिए कोई इवेंट या डज नॉट हैपन होना चाहिए। तो जो इवेंट की सर्टेनिटी है वो फिक्स नहीं है, या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा, अगर इसलिए उसको क्या बोला जाएगा, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग ऑफ इवेंट, अगर जब वो इवेंट हैपन हो जाता है एंड इफ़ दैट इवेंट हैपन देन कॉन्ट्रैक्ट बिकम इन्फोर्सेबल, कि उसमें एग्रीमेंट ऐसा था कि किसी ने अगर ए ने बी से शादी कर लिया तो मैं बी को क्या करूँगा, इतनी इतनी प्रॉपर्टी दूंगा। तो ए ने बी से शादी करना ये एक इवेंट था और वो इवेंट होगा, शादी हो गई उन लोगों की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र हो जाएगी उसको, दैट इज इन्फोर्सेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। इफ़ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग सम इवेंट इफ़ दैट इवेंट डज नॉट हैपन, मगर अगर ए ने बी से शादी करेंगे तो प्रॉपर्टी देने की बात की थी उसके फादर ने, अब वो शादी हुई नहीं, तो क्या हो जाएगा, या तो फिर क्या हो गया, इसने भी बोला था कि बी से शादी करो मेरी बेटी से तो मैं दूंगा, अब बी की हो गई डेथ, तो इम्पॉसिबल होगा, शादी कैसे करेगा, डेथ हो गई उस पर्सन की, तो वो इम्पॉसिबल अगर हो जाता है देन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। एंड कंटीजेंट और नॉन हैपनिंग, इफ़ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंटीजेंट होगा और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट एंड हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम इम्पॉसिबल देन ऑल्सो इट इज़ वॉइड। अगर क्या हो गया, जो इवन हैपन होगा उसके बाद हैपनिंग के बाद अगर हैपन हो गया देन वैलिड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा। लेकिन ये दो कंडीशन में क्या होगा, किसी की इम्पॉसिबल हो गया करना वो कॉन्ट्रैक्ट डील करना वो, तो क्या होगा, वॉइड हो जाता है। नेक्स्ट बनाता है कि वो इम्पॉसिबल थिंग है, कि वो हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। लाइक आपको बोला कि एक काफ़ी दूर तक लाइक 10 किलो माइन वगैरह आप ऐसा करो, दौड़ो 1 सेकंड के अंदर, वो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। इस तरह से भी कोई इम्पॉसिबल चीज़ करने बोलता है वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना के, तो इट बिकम वॉइड हो जाता है। नेक्स्ट वाला हमारा पार्ट आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 37 डील करता है ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टी। तो पार्टी के ऑब्लिगेशंस क्या क्या होना चाहिए, अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस टू ईच अदर दैट इज ईदर क्या होना चाहिए, टू परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेज। हमने देखा था कि प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेंस होता है, देन वो प्रॉमिस बनता है, एंड प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस मिलकर एक एग्रीमेंट बनते हैं। तो उन लोगों ने जो ऑफर दिया था परफॉर्म करेंगे, उनके जो रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस इन्हें प्रपोजल और एक्सेप्ट जो उन्होंने किया था वो करने को वो तो तैयार है, तब जाके क्या होता है, वो बनता है हमारा ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी। और ये ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है पार्टी की कि उसको ये करना चाहिए जो उसने प्रॉमिस किया है। प्रॉमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस एंड प्रॉमिसी रिफ्यूज़। दो पार्टी है ए एंड बी। अब हमने देखा था प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी कौन है, या ओ आर है या ई ओ डबल ई है, हमने देखा था। सो प्रॉमिसर यानी ए ने क्या किया, कोई प्रपोजल दिया था तो वो तैयार है अपना प्रॉमिस करने के लिए कि हमने जो डील की थी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन ये तैयार है और जो सेकंड पार्टी थी प्रॉमिसी वो क्या कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ वो जो परफॉर्मेंस। तो प्रॉमिसर को क्या करना पड़ेगा, उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी और उसकी जो लायबिलिटी थी इसको देने की, अगर इसने माना ही नहीं तो इसकी देने की कोई बात ही नहीं आती, तो इसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। और प्रोवाइडेड दैट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट भी कैसी होनी चाहिए, लेकिन ये जो ऑफर है परफॉर्मेंस की वो मस्ट भी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होनी चाहिए। एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस होना चाहिए,
कि ए ने बी को बोला कि मुझे कुछ खरीदना है, बी ने बोला कि ठीक है, लाइक घर है का कोई कार है, बी ने बोला कि ठीक है मैं कार को क्या करूँगा, ये डेट पे ये जगह पे दे दूँगा, आप आके लेके जा सकते हो। और उसमें डेट एंड टाइम जो होता है प्लीज़ प्रॉपर होना नेसेसरी है, वेग नहीं रख सकता बी कि हाँ तुम आ जाओ 8 दिन के बाद, देखेंगे होता है क्या नहीं होता है क्या, दूंगा नहीं दूंगा, या उसने बोला कि कौन से महीने में दूंगा पता नहीं, ऐसे वेग नहीं कर सकते हो। स्पेसिफिकली डेट एंड टाइम आपको बताना पड़ेगा कि ये दिन को मैं आपको दूंगा। ये डील करता है हमारा सेक्शन 31। देन आता है बाय होम कॉन्ट्रैक्ट में भी परफॉर्म। अब कॉन्ट्रैक्ट किसने परफॉर्म करना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहिए ईदर पार्टी, बोथ पार्टी में से कोई भी उसकी पार्टी या उनके कौन रिप्रेजेंटेटिव हो गया वो, अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपियर्स होगा, तो जिसमें कुछ ए ने बोला कर रहा है परफॉर्म, बी नहीं कर रहा है, वो टाइम पे नहीं करेगा वो पार्टी परफॉर्म, लेकिन या तो फिर मेन क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म बोथ पार्टी को करना नेसेसरी होता है। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट शाल है यहाँ पे मे नहीं, यहाँ आपने मे देखा, इधर पार्टी ने परफॉर्म करना चाहिए, क्यों, क्योंकि कोई एक रिजेक्ट भी कर सकता है, डिक्लाइन भी कर सकता है, एट द टाइम मे में जाता है, बट कॉन्ट्रैक्ट शाल भी परफॉर्म, शाल मतलब कंपलसरी है, मैंडेटरी प्रोविजन है, क्या है विद इन स्पेसिफिक टाइम, एंड टाइम इज स्पेसिफाइड, एंड इफ टाइम इज़ नॉट स्पेसिफाइड, अगर टाइम बोला है उसने कि परसों देना है तो परसों ही देना है, अगर लेकिन टाइम कहीं पर बोला हुआ नहीं है, नॉट स्पेसिफाइड, तो शेल परफॉर्म विद इन रीजनेबल टाइम। एंड व्हाट इज द रीजनेबल टाइम, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो रीजनेबल टाइम क्या है, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम जो डील हो रही है, जिस चीज़ से डीलिंग कर रहे हो उस चीज़ में कितना रीजनेबल टाइम हो सकता है, वो वाइस वर्सा वो चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इफेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्पेसिफिक टाइम, अब जो स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है ऑलरेडी और वो टाइम के अंदर परफॉर्म नहीं किया तो क्या इफेक्ट हो सकता है, वो बताता है कि टाइम स्पेसिफिक दिया और डील नहीं किया विद इन स्पेसिफिक टाइम में, तो उसके 3 काइंड आएंगे, उसके भी 2 काइंड आएंगे सॉरी। उसमें से पहला क्या आएगा, जब टाइम इसेंस हो कॉन्ट्रैक्ट का, लाइक घर में कोई पार्टी है हमारे और केक पहुंचा दो, तो जिस दिन पार्टी है उसी दिन केक लगेगा ना, तो टाइम इसेंस होता है कि आपकी बर्थ डेट है, कोई फॉर एग्जांपल 23 मार्च आपका बर्थ डेट है, 23 मार्च को आपको केक चाहिए था, अब आपने ऑर्डर किया केक, लेकिन वो टाइम इसेंस हो गया 23 का, लेकिन वो केक लेकर आया 24 को, अभी क्या करेंगे उस केक का, तो जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इसेंस होगा उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल होगा एट द ओमिश ऑफ प्रोमिसी। तो वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे हो जाएगा, प्रोमिसी के, क्यों, क्योंकि इनको आपने ऑर्डर दिया था कोई और लेकर जब केक आ रहा है वो 24 को, आपका बर्थडे खत्म हो गया, लेकिन अब आपको लगता है कि ठीक है अभी लेकर आया ना, इसका नुकसान क्यों करना, रख लेते घर में कोई खा लेगा, उसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। वॉइडेबल इट मीन्स 2 काइंड होती है, या तो एक्सेप्ट करेगा या तो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वो प्रॉमिसर है जिसने ऑर्डर किया था उस पर डील करता है ना कि हाँ मुझे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, या तो उसने बोला नहीं आप तो खत्म हो गया टाइम, अब मैं केक लेके क्या करूँगा, बर्थडे खत्म हो गया मेरा, तो वो रिजेक्ट कर सकता है। ये 2 भी क्या होते हैं उसके पास ऑप्शंस होते हैं, दैट इज़ अ वॉइडेबल। और जहाँ पर इसेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, लाइक आपके घर में कुछ पार्टी बिटी नहीं है, आपको ऐसे मन कर रहा था खाने का, आपने केक ऑर्डर कर दिया और वो पार्टी क्या के टाइम पर लेकर नहीं आता है, और जहाँ पर इसेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, अब ये इसेंस है क्या, उसको सिर्फ मन कर रहा था, कोई पार्टी नहीं है, कोई घर पे गेस्ट नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ मन कर रहा था, खाना था, ऑब्लिगेशन है कि हाँ उसको खाना था, उसने ऑर्डर किया था, आना चाहिए था टाइम पे, बट यहाँ पे कुछ ऐसा नुकसान होने वाला था क्या पार्टी का, नहीं होने वाला था, तो कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वॉइडेबल, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, बट प्रॉमिसर इज इंटाइटल टू कंपनसेट, लेकिन प्रॉमिस को क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे कंपनसेशन मिलना चाहिए कि आज आपने बोला तो कुछ तो मिलना चाहिए ना, अब उसने कोई टाइम दिया था कि 24 तारीख को मुझे केक चाहिए और वो केक 24 तारीख को आया ही नहीं, 25 तारीख को आया, अब उसको लेना है या नहीं लेना है, तो वो ये वॉइडेबल नहीं रहेगा, वो कैंसिल नहीं कर सकता, बिकॉज उसको कुछ ऐसा फंक्शन नहीं था घर पे, कोई भी त्यौहार नहीं था, उसने ऐसे ही मंगाया था, लेट आ गया केक, ठीक है लेट आ गया ना, तो तुम क्या करो कंपनसेशन मांग लो, इतना तुमने क्या किया, देर किया, मुझे कुछ कंपनसेट कर दो, और वो एक्सेप्ट कर लो, बट उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, दैट इज़ अ वॉइडेबल नहीं रहेगा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से 2 पार्ट आ जाते हैं, टाइम जब इसेंस होगा तब, एंड टाइम जब इसेंस नहीं होगा तब। नेक्स्ट वाला आता है हमारा सेक्शन 56 जो डील करता है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। अगर कोई बोलता है कि कोई इम्पॉसिबल एक्ट करना है, लाइक किसी का मर्डर करना है, कुछ ड्रग्स खरीदना है, ये इम्पॉसिबल, या कोई बोलता है कि चांद तारे तोड़ के लेके आता हूँ, इम्पॉसिबल एक्ट है, ऐसे काम करने बोलना कि जो इम्पॉसिबल है, तो ऐसे जो होते हैं एग्रीमेंट टू इम्पॉसिबल एक्ट इज़ वॉइड, तो वो क्या हो गया, ऑब्वियसली वॉइड हो जाएंगे। एंड कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म विच बिकम इम्पॉसिबल और अनलॉफुल इज़ वॉइड, जो सेकंड पॉइंट हमने बोला कि ड्रग्स खरीद के लाओ, किसी का मर्डर कर लो, तो ये अनलॉफुल है अगर, तो भी वॉइड हो जाएगा। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और यहाँ पर आता है डील करता है हमारा सेक्शन 56 दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आपने किसी चीज़ को बनाया, कोई एग्रीमेंट किया, जो एग्रीमेंट कर रहे हो वो अनलॉफुल है या फिर इम्पॉसिबल है, तो वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लीकेबल होगा और उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, वो वैलिड नहीं रहेगा।
देन आता है हमारा नोवेशन एंड रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन एंड रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 62 में डील करता है। नोवेशन इट मीन्स सब्सटीट्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेसेशन मीन्स कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, सब्सटीट्यूट किया जाता है उसमें, उसी को क्या किया जाता है, ये पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, अब इसमें कुछ नया टर्म डाला, नोवेशन, न्यू, कुछ नया तैयार करना उसके अंदर, सब्सटीट्यूट करना वो कॉन्ट्रैक्ट को, पुराने की जगह पे नया एप्लीकेबिलिटी लेके आना, दैट इज अ नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड रेसेशन मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल कर देना, दैट इज अ रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन हमारा आता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 68 टू 72 डील करता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन स्पेसिफिकली 68 बताता है नेसेसिटी से अप्लाई टू पर्सन हु इज़ इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वो जो हमने पहले भी देखा था कि माइनर को आपने क्या किया, वो इनकैपेबल है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है माइनर के साथ किया हुआ, लेकिन उसके ऊपर जो नेसेसिटीज आपने खर्चा करे हैं वो नेसेसरीज क्या कर सकते हो, उसको प्रॉपर्टी से आप रिकवर कर सकते हो, दैट इज द सेक्शन 68। वेर एनी पर्सन इज सप्लाई नेसेसिटी होना चाहिए लेकिन लग्जरियस नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो नेसेसरी है किसी को लग रही है उतना ही दो। आप लग्जरी ट्रीटमेंट दे रहे हो और बोल रहे हो कि हाँ इसकी प्रॉपर्टी मैं पूरा ले लूँगा, इस तरह से आप उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकते। एंड वो इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट लाइक माइनर या अनसाउंडनेस माइंड ऑफ पर्सन, देन ही इज़ नॉट इंटाइटल, वो क्या होगा, इंटाइटल नहीं रहेगा, वो एक्सपेंसेस जो है देने के लिए, बट उसकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबल रहेगी, मतलब उसकी प्रॉपर्टी से आप रिकवर कर सकते हो। माइनर इज नॉट अ पर्सनली लाइबल, हिज प्रॉपर्टी इज लाइबल, लाइक इस तरह से वो डील करता है। सेक्शन 69 डील करता है हमारा रियम्बर्समेंट ऑफ पेमेंट मेड विच इज़ ड्यू टू अनदर पर्सन। वेर एनी पर्सन हु इज इंटर इन पेमेंट ऑफ मनी विच इज़ लीगली ड्यू टू अनदर पर्सन, देन ही इज़ इंटाइटल टू रिम्बर्स द अमाउंट इफ़ ही मेक द पेमेंट। लाइक हम बैंक के ट्रांजेक्शन देखते हैं कि ए ने बी को ट्रांसफर किया कोई अमाउंट, गलती से एक डिजिट गलत टाइप हो गया उसके हाथ से और सी के अकाउंट में चला गया वो अमाउंट, और सी के अमाउंट अकाउंट में चला गया, तो आपके पास वो राइट है कि आप रियम्बर्स करा सकते हो सी के पास, बैंक को बोल के कि मेरा ऐसा गलती से अमाउंट चला गया और मेरा अमाउंट ऑफ रिफंड कराओ, वो बी को देना था, तो बैंक क्या करेगी, सी से वो रिफंड करके लेगी अमाउंट, लीन, या फिर वो नहीं देने को तैयार है तो बैंक उसको लीन मारता है, लीन होल्ड करता है उसके अकाउंट पे, देन उसका असेंट, लीन मार्क करने के बाद कोई भी अपने अकाउंट की जो अमाउंट होती है वो यूज़ नहीं कर सकता है, अब वो यूज़फुल ही नहीं रही, इसलिए वो जो सामने वाला पर्सन है वो उसको क्या कर सकता है, उसको डेबिट कंसर्न देना होगा उसको, और वो कंसर्न साइन फॉर्म पे करने के बाद जो अमाउंट है बैंक ट्रांसफर करती है, जिसका पैसा ट्रांसफर हुआ गलती से उसके अकाउंट में रीट्रांसफर कराती है वो, दैट इज अ 69। सेक्शन 17 डील करता है ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन वो इंजॉयज बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट। लाइक किसी पर्सन को पिज़्ज़ा डिलीवरी होता है, जो फूड डिलीवरी आजकल बहुत सारे ऐप चलते हैं, वो फूड डिलीवरी वाले, पहले क्या होता था, अभी तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होते जा रहा है, पहले क्या था कि फूड डिलीवर करा, आप लेकर जाते हो, आपने फूड डिलीवर करके वो पूछेंगे डिलीवरी बॉयज़, आपने बोला हाँ पेमेंट करे हुआ है, आपने रिसीव कर लिया, आपने खा लिया वो प्रोडक्ट, लेकिन जिसको मिलना था उसको मिला नहीं, उसने कंप्लेन रेज किया, तो फूड डिलीवरी बॉय ने बोला कि अरे यार मैं इसको देना था, आपको देना था क्या, मुझे लगा सेम ही है, एक बिल्डिंग की थी, सेम घर था, तो मैं कंफ्यूज होगा और आपकी जगह पे मैंने सामने वाले को दे दिया सेम नाम होने के कारण। अब वो उसको जाके बोलेगा कि सर आपने जो पिज़्ज़ा खाया ऑर्डर किया था वो आपका ऑर्डर नहीं था, सामने वाले भैया का था, तो आप क्या करो, जो पिज़्ज़ा आपने खाया कोई बात नहीं, मैं उनको दूसरा दे दूंगा, आप मुझे वो पेमेंट रिफंड कर दो, जो उसका पेमेंट था, इसका जो भी 500,000 रुपये पेमेंट था वो पिज़्ज़ा का, वो आप करो मुझे दे दो। तो अगर वो मना करने, इसलिए वो जो पर्सन ने बेनिफिट्स उठाए हैं वो मना नहीं कर सकता कि मैंने, तुमने ला कर दिया तो मेरी क्या गलती है, मैंने खा लिया, तुमने दिया तो मैंने थोड़ा ऑर्डर किया था, वो इस तरह से ग्राउंड ना ले, इसकी वजह से आता है सेक्शन 70, दैट इज अ वेयर पर्सन इंजॉयज, अब उसने खा लिया मतलब इंजॉय करा, बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेशियस, उसने ऑर्डर नहीं किया था, नॉन ग्रेशियस था, उसने उसका क्या किया, खा के बेनिफिट उठा लिया। शाल है, मे नहीं है, शाल कंपनसेट, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा अदर पार्टी को जिसका नुकसान हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड, किसी की कोई चोरी हो गई वाली चीज़, मतलब किसी की चीज़ कोई खो गई, कहीं गिरे वाली, रास्ते पे कोई चीज़ मिलती है और वो चीज़ हमने उठाई रास्ते से, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आएंगी वो डील करता है यहाँ पर। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसकी एज अ बेली, कि उसको वो चीज़ मिली है तो उसको ढूंढना है जिस पर्सन की चीज़ है और उसको वो ले जाके उसने वो चीज़ देना नेसेसरी है, क्योंकि तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली आती है। और उसको रिफंड में क्या मिलेगा, तो सिर्फ उसके जो एक्सपेंसेस आए, जो खर्चा आया वो पर्सन को ढूंढने के लिए, उतना वो क्या कर सकता है, रिकवर करके ले सकता है सामने वाले पर्सन से। इसलिए क्या बोलता है लॉ कि ऐसी कोई चीज़ उठाओ मत, अब उठाई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई अब आपकी, उसको उसके घर तक ओपन उसको पहुंचाओ, और पहुंच करने के लिए आपको क्या मिलेगा, तो पहुंचाने के लिए जितना खर्च है आपको सिर्फ वही मिलेगा। नेक्स्ट बात आती है पेमेंट मेड और थिंग डिलीवर बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन। कोई पेमेंट क्या होती है मिस्टेक से, जो हमने मिस्टेक देखा था सेक्शन 22, या अंडर कोर्शन, या हमने देखा था सेक्शन 15 में अंडर कोर्शन क्या होता है। तो कोर्शन में हमने देखा था जितने भी आईपीसी के सेक्शन है ऑफेंसेस से वो करने का थ्रेट देना, दैट इज अ कोर्शन। तो ये करने की वजह से अगर कोई डिलीवर करता है कोई पेमेंट, तो पेमेंट मेड और डिलीवर बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन शैल रीपे मनी और रिटर्न द थिंग।
तो इस तरह से क्वेश्चन के अंदर किसी ने कुछ कराया तो उसको वो जो पेमेंट है, स्पेसिफिकली पेमेंट की बात कर रहा है, तो पेमेंट उसको वापस करना पड़ेगा। और नेक्स्ट वाला जो हमारा थर्ड पार्ट हमने देखा था कॉन्सिक्वेंशियल पार्ट, वो था रेमिडियल पार्ट। तो रेमिडी क्या है इसमें कि 73 बोलता है कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 73 में डील करता है इफ़ पार्टी कमिट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है उसने ब्रीच कर दिया वो कॉन्ट्रैक्ट, देन जो पार्टी इंटाइटल थी कंपनसेशन के लिए वो क्या कर सकती है, लॉस हुआ जिसको, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने से वो सूट फाइल कर सकती है वो अनदर पार्टी पे। इधर पार्टी जो भी जिसने भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो इधर दोनों में से कोई भी एक पार्टी जिसने ब्रीच किया है वो पार्टी सू कर सकती है अगेंस्ट सेकंड वाले पार्टी के ऊपर, कंपनसेशन मांग सकती है उसके अंदर, बिकॉज ये सिविल लॉ है। सेक्शन 74 डील करता है स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। तो स्टिपुलेशंस बाय वे ऑफ पेनल्टी अगर होते हैं, कोर्ट अवार्ड करता है रीजनेबल कंपेशन नॉट एक्सटेंडिंग पेनल्टी, कि आपने कोई एग्रीमेंट बनाया उसमें बोला कि अगर हम लोगों ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो हम क्या करेंगे, पेनल्टी ऐसी रखेंगे कि हमने किया 1 लाख का एग्रीमेंट और हमने ब्रीच कर दिया तो हम क्या करेंगे 5 लाख रुपए देंगे एक को। तो ये ब्रीच बोला उन्होंने, एक एग्रीमेंट बना दिया, अब एक की जगह पर उन्होंने क्या बोला 5 लाख देंगे, और क्या हुआ, ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के बाद कोर्ट में केस फाइल हो गया। कोर्ट में केस फाइल होने के बाद उन्होंने बोला कि मुझे 5 लाख, ये ने क्या बोला, ए और बी का एग्रीमेंट हुआ था, ये ने बोला कि 5 लाख रुपए अगर हमारा ब्रीच होता है तो हमने एग्रीमेंट में लिख के रखा था, तो मुझे 5 लाख रुपए दिला दो कोर्ट को। तो कोर्ट ऐसा नहीं करेगा कि 5 लाख रुपए देगा, कोर्ट क्या करेगा, रीजनेबल कंपेशन देगा जितनी उसको देना चाहिए। या ऐसा नहीं बोलेगा कि 10 लाख रुपये दे दो, चलो तुमने ब्रीच कैसा किया उसका कॉन्ट्रैक्ट, तुम क्या करो उसको बी को, ए को 10 लाख रुपए दे दो, ऐसा नहीं कर सकता है कोर्ट। नॉट एक्सीडिंग पेनल्टी, जितनी पेनल्टी है उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप, उसको कंपनसेशन दे नहीं सकते बाय कोर्ट। ये डील करता है हमारा सेक्शन 74। देन आता है हमारा सेक्शन 75, दैट इज द लास्ट सेक्शन ऑफ पार्ट फर्स्ट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 1 to 75 का डील करता है पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज इंटाइटल टू कंपनसेशन, जिसने खुद से वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना कर दिया वो क्या कर सकता है, कंपनसेशन मांग सकता है। ये बोलता है हमारा सेक्शन 75। स्पेसिफिकली हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, जो बहुत सारे LLB को स्टूडेंट को पार्ट फर्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील करता है। ये पूरा हमने आज उतना रिवाइज किया, उतना डिस्कस किया। रिवीजन में मैंने रैपिड रिवीजन करने की जगह पे थोड़ा सा लेंथी लिया, बिकॉज डेप्थ ऑफ द सेक्शंस अंडरस्टैंड करना थोड़ा नेसेसरी था आप लोगों के लिए, इसलिए हमने थोड़ा सा रैपिड रिवीजन की जगह पे थोड़ा स्लो किया एंड थोड़ा सा डीप में लिया। तो आई होप आप सभी को सेक्शन 75 तक जो फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है अच्छे से समझ में आया होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं, हमारे जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है जो डील करते हैं रिमेनिंग सेक्शन 76 टू सेक्शन 266, नेक्स्ट वाले हमारे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा रिगार्डिंग दैट होल ऑफ द टीचिंग तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, आप कभी भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है या मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट टू माई चैनल एंड शेयर with your friends and colleagues. Thank you so much for watching my channel.